ہمیں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ سب لوگ ٹھیک ہو؟ خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے یونا نبی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے پورا چیپٹر جو ہے ہم تلاوت کریں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں بائبل ہے تو ضرور نکال سکتے ہیں۔ یونا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے باب کے آخر تک خدا کے کلام میں یہ مرغوم ہے، اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ڈانٹ پھوڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رواں کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریہ و زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے۔ آمین۔ سب کہیے آمین۔ آمین۔ برکت چاہیے تو آمین بولیے۔ آمین۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے یونا کی کتاب کا روزہ۔ چونکہ ان دنوں ہم روزے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے مختلف موضوعات کے حوالے سے خدا کے کلام کو سیکھا ہے۔ فار ایگزامپل شفاعتی روزہ یا پھر دفاع کے لیے روزہ، اور آج ہم بات کریں گے یونا کی کتاب کے روزے کے حوالے سے۔ تو اس سے بیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، یونا جو ہے یہ اسرائیلی نبی ہے، اور جن لوگوں کے پاس اس کو بھیجا گیا وہ اسرائیلی نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کرسچن تھے، بلکہ وہ ایک غیر قوم کے لوگ تھے جن کو اسوری قوم کہا جاتا ہے۔ ان کے ملک کا نام بھی اسور ہے، اور قوم کا جو نام اسی سے ریلیٹڈ اسور ہے، اور پھر ان کے ایک شہر کا نام بھی جو ان کا کیپٹل سٹی تھا، دارالخلافہ تھا، اس کا نام بھی اسور تھا۔ اور سب سے جو مین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کے ایک دیوتا کا نام بھی اسور تھا۔ دیوتا تو ان کے خیر کے ہی تھے، لیکن دیوتا کا نام بھی اسور تھا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھیجا جانے والا شخص ہے وہ خدا کا نبی ہے، زندہ خدا کا نبی ہے، اسرائیل قوم کا نبی ہے، اور جن کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ غیر قوم۔ کون ہے؟ غیر قوم اسوری قوم ہے،
और जिस शहर में वो भेजा जा रहा है उस शहर का नाम नैनवा है। खुदा ने उसको कहा कि नैनवा में जा और मुदा देगा। इस कौम जो असूरी कौम जिनका मुल्क असूर है, ये के बाद दीगरे इनके ये कैपिटल सिटी है। इनका जो कैपिटल सिटी असूर मैंने बताया, और फिर कला इनका शहर है, और फिर नैनवा इनका शहर है, जो यके बाद दीगरे दरअल खिलाफा या दरअल सब्र बने। जिस शहर में खुदा ने यूना को भेजा है बुनियादी करने के लिए, वो भी उनका दारुल खिलाफा था, कैपिटल सिटी था असूरी कौम का। तो बहुत बड़ा शहर था ये। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ें तो आपको मिलेगा कि उसने 3 दिन तक मुसाफिर की है उस शहर। तो उसका मतलब है बहुत बड़ा वो शहर। ये कौम बड़ी जंगजू और बड़ी लड़ाकी थी, और बनी इसराइल के साथ इनका अक्सर लड़ाइयां, झगड़े, जंग, फसाद ये रहता ही था। एक तो ये मैंने बताया कि कौम लड़ाकी थी, जंगजू थी। दूसरी ये मुतकब्बर भी थी, घमंडी भी थी। तो मुतकब्बर और घमंडी होने की वजह से ये कौम को खुदा एक अल्टीमेटम देना चाहा। और इस किताब के अंदर आपको मिलेगा, जब यूना को खुदा भेजता है तो कौम को एक अल्टीमेटम दिया जाता है, कौम को अलर्ट किया जाता है, कौम को खबरदार किया जाता है कि 40 दिन के बाद नैनवा, बोलिए, बर्बाद हो जाएगा। ये उसको खबरदार किया गया है, ये उसको अल्टीमेटम दिया गया है कि तुम्हारे पास सिर्फ 40 दिन है, इसके बाद नैनवा बर्बाद किया जाए। और कभी आप नहूम की किताब पढ़े तो नहूम की जो किताब है वो भी नैनवा के हवाले से है, और वहां पर अल्टीमेटम की बात नहीं, वहां पर नैनवा की अदालत की बात है। तो याद करो, किसी भी शख्स को, किसी भी कौम को, किसी भी खानदान को, किसी भी मुल्क को, कबीले को पहले अलर्ट किया जाता है, पहले अल्टीमेटम दिया जाता है, पहले खबरदार किया जाता है। अगर वो वक्त को नहीं संभालता या ठीक होने के बाद फिर बिगड़ जाता है, तो आखिर उसकी अदालत का वक्त आ जाता है। तो यूना की किताब जो है इस हवाले से बात करती है कि खुदा ने यूना से कलाम किया है और यूना को कहा नैनवा में जा। तो मैंने आपको बताया क्योंकि यूना इस्राएली शख्स था, जिंदा खुदा का बंदा था, और ये कौम बड़ी जंगजू कौम थी, फसादी कौम थी, बड़ी मुतकब्बर कौम थी, और यूना इनके पास जाना नहीं चाहता था। इसकी कई वजूहात हो सकती है, इसकी एक ही वजह नहीं है, इसकी कई वजूहात है। जब हम मुफस्सिरीन को देखते हैं तो इसकी कई वजूहात बताते हैं कि यूना क्यों नहीं जाना चाहता। जी, जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसकी तरफ आए, लिखा है दूसरी बार खुदा का कलाम यूना पर दूसरी बार नाज़िल हुआ। यही नहीं आपने पढ़ा? क्यों तो इस तरह ठंडे हैं, आप तो फटक नहीं लाते? क्या है? यूना पर दूसरी बार खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। जो सुनने वाले हैं सुनेंगे तो बरकत मिलेगी। पहली बार उस पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, पहला बाब पहली आयत में आपको मिल सकता है। कलाम यूना पर नाज़िल हुआ, इसका मतलब है आसमान से कलाम उस पर उतरा, जिंदा खुदा की तरफ से कलाम उस पर उतरा, कलाम की समझ
कुछ खुदा चाहता था वो नहीं किया। ऐसा ही है, खुदा कहां भेजना चाहता था? नैनवा में। वो कहां चला गया? समझ आई उसको या ना आई? पहली मर्तबा आ गई। ये भी पता चल गया कि कलाम खुदा की तरफ से है, ये भी पता चल गया कि खुदा कहां भेज रहा है, लेकिन मर्जी अपनी खुदा के कलाम को रिफ्यूज किया। अब जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो दूसरी बार खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ है और सेम कलाम, जो कलाम पहले मिला था कि नैनवा में जा, वही कलाम यहां पर उसको दोबारा मिला है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है, पहली मर्तबा नाज़िल होने में और दूसरी मर्तबा के नाज़िल होने में कलाम सेम है। कलाम भेजने वाला भी वही शख्स है और जिस पर भेजा गया वो भी वही शख्स है। लेकिन फर्क ये है, पहली मर्तबा उसने कलाम को रिफ्यूज किया, उसने कलाम को रद्द किया, उसने कलाम की कदर न की, लेकिन दूसरी मर्तबा उसने खुदा के कलाम पर अमल किया। दूसरी मर्तबा उसने खुदा के कलाम को पूरा किया। जी समझ आ रही है? सभी जाग रहे हो? हाथों को लहराओ जरा। सभी को समझ आ रही है? पहली मर्तबा कलाम मिला तो क्या किया? रद्द कर दिया। दूसरी मर्तबा मिला तो क्या किया? पूरा किया। कितने लोगों ने पहली मर्तबा कलाम सुना, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, 10वीं मर्तबा? हाथ खड़ा कीजिए। जिंदगी में कई मर्तबा कलाम सुना, हाथ खड़ा कीजिए जैसे मैंने खड़ा किया है। कईयां दा इत्थों तक ही ना पिछले को नजर आए तो ना अगले को नजर आए। कितने लोगों ने पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, 10वीं मर्तबा, 50 मर्तबा खुदा का कलाम सुना है? जी बहुत हाथ खड़े, आप मुबारक लोग हैं, तालियां आपने बहुत। पहली बात तो सीखने वाली है वो ये है कि यूना पर कलाम नाज़िल हुआ, उसने पहली मर्तबा इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कलाम की समझ आ गई, ये भी समझ आ गई कलाम कहां से आ रहा है। ये जो नाज़िल हुआ का लफ्ज़ है ना, ये बताता है जब कोई चीज ऊपर से नीचे को आती है, अजी आसमान से जमीन की तरफ आती है, इसका मतलब होता है नाज़िल होना। कोई चीज ऊपर से नीचे को आती है, इसको क्या कहते हैं? उसको पता चल गया कि कलाम कहां से आ रहा है, लेकिन पहली मर्तबा उसने खुदा के कलाम की कदर नहीं की और उसको कबूल नहीं किया और उसकी बात नहीं मानी। लेकिन दूसरी मर्तबा उसने खुदा के कलाम को बोलिए शाबाश। ये अपनी भी बारी चेक करिए, हाँ सी केड़ा मनिया, पहली बारी वाला, दूसरी वाला केड़ा मनिया जी, तीसरी वाला या कोई भी नहीं अभी तक? शाबाश जी। आगे चले। जब यूना पर नाज़िल हुआ खुदा का कलाम तो आपको ये मिलेगा पहले चैप्टर में भी, और यहां भी ये बात हो रही है। तो पहले चैप्टर में आपको ये लफ्ज मिलेगा कि नैनवा के खिलाफ मुनादी, ये पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। किसी को संदेशा देना अलग बात है, लेकिन जब किसी के खिलाफ मुनादी कर रहा है तो ये काम बड़ा मुश्किल है। क्या ख्याल है? किसी के खिलाफ मुनादी करना क्या है? मुश्किल है, आसान नहीं है। नहीं तो यूहन्ना इस्तबागी की आप स्टोरी को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी। यूहन्ना इस्तबागी ने उसके खिलाफ, हेरोदीस और हेरोदियास के खिलाफ बात की और फिर क्या हुआ? उसको अपना सर कलम करवाना पड़ा, क्योंकि खिलाफ मुनादी वो कर रहा है। तो जब नात नबी दाऊद के पास जाता है तो कैसे वो उलझाव के साथ, पहेलियों के साथ, बुझारतों के साथ वो कलाम कर रहे, ऐसे ही है। वो डायरेक्ट तो नहीं बात कर रहा, कैसे वो कर रहा है? पहेलियों के साथ, है ना?
बुजुर्गों के साथ। तो यहाँ पर यूना से खुदा ने कहा कि नैनवा के खिलाफ मुनादी कर। ये एक मुश्किल मैसेज था जो कन्वे करना है, मुश्किल मैसेज है जो आगे डिलीवर करना है। लेकिन दूसरी मर्तबा जब कलाम हुआ तो उसने इसको लिया है और फिर वो नैनवा को गया है। और बाइबल कहती है 3 दिन तक वो नैनवा में घूम रहा है। कितनी देर तक? इसका मतलब है बड़ा शहर। 3 दिन तक वो उसके बाजारों में, उसकी गलियों में मुनादी कर रहा है। क्या मुनादी कर रहा है? अजी यूना 3 दिन तक वो मुनादी करता रहा है नैनवा के अंदर, क्योंकि खुदा ने उसको भेजा था। और बेशक मुश्किल है, क्योंकि यूना तो इस्राएली है, यूना तो यहूदी है। जिनमें मुनादी कर रहा है वो इस्राएली नहीं है, और ना ही वो क्रिश्चियन है, ना वो इस्राएली है, बल्कि वो तो एक गैर कौम है और बुतप्रस्त कौम है। और वो तो अपने देवता असूर को मानते हैं, वो तो अपने देवता तजून को मानते हैं या दीगर देवताओं को मानते हैं। लेकिन यूना को खुदा ने उनके बीच में भेजा कि जाकर मुनादी करे कि 40 दिन के बाद नैनवा जो है वो बर्बाद किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात यूना के लिए करनी भी क्या थी, मुश्किल, और उनके लिए सुननी भी क्या थी। दोनों का मुश्किल थे ना। लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसने खुदा का कलाम लिया तो यूना ने ये मुनादी की। कितने दिन तक? ऐसा समझो 3 दिन तक क्रूसेडी। कितने दिन तक? उनके बाजारों में, उनकी गलियों के अंदर वो बात कर रहा है, लोगों सुनो खुदावंद का संदेशा। नैनवा के लोगों सुनो खुदावंद का कलाम। नैनवा शहर 40 दिन के बाद बर्बाद किया जाएगा। और ऐसे कलाम को कबूल करना मुश्किल था, क्योंकि वो असूरी थे और ये इस्राएली है। और इसने क्या की है? मुनादी वहां की है। और बेशक लफ्ज मुनादी का है वहां पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका मतलब है अनाउंसमेंट, ऐलान। इसके लिए बुनियादी लफ्ज जो है कारा यूज हुआ इब्रानी ज़बान का। तो कारा के कई मानी है, ऐलान करना, बुलंद आवाज से बोलना, मुनादी करना, ऊंची बात करना, अजी फरियाद करना। कारा का बहुत उसके मीनिंग दिए गए हैं। तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई काम के लिए अनाउंसमेंट की जाए, ऐलान किया जाए उसके लिए। तो यूना 3 दिन तक ये ऐलान कर रहा है। ऐलान क्या कर रहा है? कि तुम्हारा शहर 40 दिन के बाद। तो हमारे कल्चर में भी अगर कोई शख्स ऐसा बोले इस गांव के ताल्लुक से, तो लोग उसको क्या कहेंगे? अच्छा, उसको शाबाश देंगे, बल्कि उसको पकड़ लेंगे कि ये हमारे गांव के लिए खैर खा नहीं, बल्कि लोग इस तरफ जाएंगे कि ये इसके लिए बुरी दुआ मांगते हैं। तो नोट करें जरा, 3 दिन तक यहाँ पर वो मुनादी कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर नैनवा के लोगों, क्या लिखा जी? आपके पास बाइबल है तो आपको ये 5वीं आयत में मिल सकता है कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाया। अल्लाह वो किसको मानने वाले थे? देवताओं को। किसको मानने वाले थे? असूर देवता को, तजूम देवता को, जो मछली की शक्ल का था उसको मानने वाले थे। जब यूना ने 3 दिन मुनादी की है तो नैनवा के बाशिंदे यूना के खुदा पर ईमान लाए। हालेलुया, हालेलुया। किस खुदा पर ईमान
अगर वो यूना को सच्चा मान रहे हैं तो पहले वो यूना के खुदा को सच्चा मान रहे हैं। कोई खुदा को सच्चा मानेगा तो उसके बाद फिर उसके बंदे को, नबी हो, काहिन हो, खादम हो, कोई भी हो, उसको वो सच्चा मानेगा। तो यहाँ पर नैनवा के लोग ईमान लाए हैं। किस पर ईमान लाए हैं? आसमान के खुदा पर ईमान लाए हैं। और साथ ही इसी के अंदर ये बात पिनहा है, अगरचे आश्कारा नहीं लेकिन इसके अंदर मख्फी है कि वो यूना पर भी ईमान लाए हैं कि ये जिंदा खुदा का बंदा है और ये जिंदा खुदा की बात कर रहा है। जिसने भेजा वो जिंदा है और ये बात जो कर रहा है ये हकीकी और सच्ची है। उन्होंने खुदा पर ईमान को लाए हैं बिशिंदे, और उन्होंने भी फिर अपने उस शहर में, उस मुल्क में मुनादी की है। और उनकी मुनादी फर्क है और यूना की मुनादी और फर्क है। जरा नोट करें, यूना की मुनादी ये थी कि 40 रोज के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा। अब शिंदों की मुनादी ये है कि रोजे की मुनादी की है कि रोजा रखो, टाट ओढ़ो। क्या करो जी? रोजा रखो, टाट ओढ़ो, और इसमें कोई शख्स ऐसा ना हो जो रोजा ना रखे और टाट नोड़ 100 ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। क्या यहाँ लिखा है? अदना वाला। क्या जी? अदना और आला। अदना वाला से मुराद बहुत नंबर और फिर दुगना। अदना वाला से मुराद बहुत अमीर और फिर बहुत गरीब। सभी रोजा रखे और सभी टाटोड़े। ये मुनादी नैनवा के लोगों की तरफ से थी, नैनवा के बशिंदों की तरफ से थी। और उसके बाद आपको मिलेगा 6ठी आयत में कि ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और शाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ। कौन? मुझे सबकी आवाज आइए। कौन? इससे बेहतर के बादशाह मुनादी करे, इससे बेहतर के बादशाह फरमान जारी करे। पहले बादशाह खुद उस पर अमल पैरा हुआ। पहले बादशाह खुद रोजे में है। पहले बादशाह ने खुद टाट ओढ़ा है। और ये ऐसा लिबास होता है टाट, ਜਿਹੜਾ जिस्म ਨੂੰ ਚੋਂ ਵਧਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। सेबिया की बोरी देखी पुराने जमाने च? उसकी शक्ल का ये होता है, लेकिन वो तो शायद इस तरह बदन को नहीं वो डिस्टर्ब करती, लेकिन जो ये लिबास है टाट का, इसके अंदर ऐसी बुनतल होती है जो बदन को वो चुभती रहती। एक लम्हा भी आप सुकून से बैठ नहीं सकते। तो जो सुकून दी होए लिबास पोशाक, खराटे वाधू, नींद वाधू, रोटी रज के खाधी होए ते नींद वाधू ते खराटे वाधू। ते जदों उधरों सताए भुख, उधरों सताए प्यास, उधरों सताए लिबास, ते फिर नींद कितनी होनी? क्या ख्याल है? और बादशाह इससे बेहतर कि ऐलान करे रोजे का, इससे बेहतर के बादशाह लोगों को बताए कि टाट ओढ़ो, लोगों को बताए कि गिरफ्तारी करे, लोगों को बताए कि रात पर बैठ जाओ। जब लोगों की तरफ से खबर पहुंची है, जी, तो बादशाह ने ये नहीं किया
کہ حکومت والوں سارے نے روزے کھلوائے جان کے بعد تسی رکھو. ہاں جی کیا کہا بادشاہ؟ وہ خود روزے میں ٹھہر گیا، وہ خود رات پر بیٹھ گیا، اس نے خود ٹاٹ اوڑا. جب سبھی لوگ گھر کا ایک فرد نہیں، ایک شخص نہیں، بلکہ پورا گھرانہ، پورا خاندان، فیملی کے سبھی لوگ خدا کی حضوری میں جھک جائے، اپنے آپ کو چھاؤں کے درخت کی طرح جھکا لے، اپنے آپ پر گریہ زاری کرے، اپنے کاموں پر افسوس کرے، اپنی روشوں کو بدلے، آسمان کا خدا رحم سے بھر جاتا ہے، درد سے بھر جاتا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. اس خدا کو جو نظر کرنے کو تھا روک دیتا ہے، کیونکہ پورے کے پورے لوگ ڈر گئے ہیں اور جھک گئے. آمین. ادنا و اعلیٰ کون جھکے ہیں؟ شاباش. ادنا و اعلیٰ سبھی. یہ نہیں ہے کہ صرف کوائر لیڈر، کوائر انچارج، بجانے والا، سنڈے اسکول ٹیچر، ڈیکن ڈیکنس، پاسٹر، ایلڈر، مبشر، مبشرہ، خزانچی، وہی نہیں ہے، بلکہ سبھی لوگ ادنا و اعلیٰ. آمین. اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے منادی کروائی ہے. پہلے بادشاہ نے خود روزہ رکھا ہے، بادشاہ راہ پر بیٹھا، اور بادشاہ نے پھر کیا کروائی ہے؟ اے منادی وہ زبردست ہے. ہاں جی جس بات کی منادی ہو رہی ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی چھا جائے. آمین. تو یہاں پر بادشاہ نے پھر آپ کو ملے گا 7ویں آیت میں، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رواں کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے. گریہ یعنی خدا کی حضوری میں روئیں، خدا کی حضوری میں چلائیں، اپنے جو کام غلط کر چکے ہیں ان پر پچھتاوا کریں. گریہ زاری، جو کام اچھے نہیں تھے ان پر کیا کیجئے؟ پچھتاوا کیجئے، گریہ زاری کریں. اور دیکھیں یہاں پر پہلے یونا نے منادی کی ہے کہ 40 دن کے بعد شہر کیا ہو جائے گا؟ برباد. اس کے بعد نینوا کے لوگوں نے منادی کی ہے کہ کیا کریں گے؟ ہاں جی کیا کریں گے؟ روزہ. کیا کریں گے جی؟ روزہ. اور پھر اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے منادی ہوئی ہے کہ انسان تو کیا حیوانوں کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا. اور یہ یہاں پر بائبل کے اندر ایک ہی روزہ ہے جس میں پوری قوم روزے میں ہے، اور ادنا و اعلیٰ سبھی روزے میں ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی روزہ یہاں پر لکھوا دیا گیا ہے. اور 3 دن اور 3 رات تک یہ اس کنڈیشن میں رہے ہیں، رو رہے ہیں خدا کی حضوری میں، اور خدا کی حضوری میں آنسو بہا رہے ہیں، اور خدا کی حضوری میں گریہ و زاری کر رہے ہیں، اور خدا کی حضوری میں پچھتاوا کر رہے ہیں. روزہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا انداز، ان کا سٹائل، ان کی ادا بڑی زبردست ہے. ہر شخص رات پر بیٹھ گیا، ہر شخص افسوس کر رہا اپنے کاموں پر. اور آخر میں آپ کو ملے گا یہ 8ویں آیت میں جب بادشاہ نے کہا گریہ زاری کرے تو لکھا ہے بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے کیا ہے؟ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے
कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक। 10वीं आयत काबिल गौर है। क्या लिखा है 10वीं आयत में? यशायाह की किताब 58 चैप्टर को मद्देनजर रखे 3री आयत से वहां पर लिखा है, हमने क्यों रोजे रखे जब तू नजर नहीं करता। यशायाह 58 चैप्टर की 3री आयत है। हमने क्यों, बोलिए बोलिए, रोजे रखे जब तू नजर नहीं करता। यहां पर 10वीं आयत पढ़िए, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी। वाह, इसका मतलब है उनके रोजे पर खुदा ने क्या किया? नजर की है, निगाह की है। और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आपका रोजा खुदा की हुजूरी में उसी वक्त फायदामंद होता है जब खुदा नजर करता है, जब खुदा निगाह करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, खुदा ने उनकी ये हालत देखी, उनका स्टाइल देखा, उनका अंदाज देखा, उनकी गिरियाजारी देखी, उनकी खाकसारी देखी। उन्होंने अपनी जात की नफी कर दी है। अपने हाथों के काम से वो क्या आए हैं? बाज आए हैं। और अपनी रविशों से क्या आए हैं? अपनी रविशों से बाज आए हैं। तो खुदा ने भी अजाब रोक दिया है। आमीन आमीन। खुदा ने अजाब क्या किया है? रोक दिया। कब अजाब रोका जा सकता है? रोजा तो अच्छी बात है, लेकिन जब रविशों में तब्दीली आती है। खुदा कब अजाब रोकता है? जब इंसान अपनी रविशें यानी गलत रविशें छोड़ देता है। कब अजाब नाज़िल करता है? जब उसको इंसान की रविशें पसंद नहीं आई। तो नैनवा के रोजे से बड़ी ही बातें सीखने वाली हैं। पहली बात याद कीजिए, हमें खुदा के कलाम को अमली जामा पहनाना है, जिस तरह यूना ने पहनाया। अगर पहली मर्तबा नहीं तो दूसरी मर्तबा तो फिर शाबाश जरूरी है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, कुछ भी आपको उम्मीद नजर ना आए। जैसे यूना वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि साइमीन जो है वो जिंदा खुदा को मानने वाले नहीं है। वहां एक मेंबर भी नहीं है जो आसमान के खुदा को मानने वाला है। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो यूना को फेवर दे। लेकिन अगर खुदा आपको भेजता है तो आप जरूर जाएं और खड़े हों और खुदा काम करेगा। दूसरी बात यह है कि जब लोग किसी अच्छे काम के लिए मुतफिक होते हैं, जैसे नैनवा के लोग A to Z मुतफिक हुए, तो खुदा ने उनके मुल्क पर क्या कर दिया? रहम कर दिया। तीसरी और आखिरी बात, रवैयों को बदलना बड़ा जरूरी है। किरदार को बदलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो रवैशें हैं वही अजाब लाने का बायस बनती है। और रवैशें अगर बदली जाए तो अजाब रुक जाने का सबब ठहरती है। कलाम की रोशनी में हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हमारी रवैश कैसी है? हमारा खुदा के हुजूरी में अंदाज और स्टाइल और अदा कैसी है? क्या जिंदगी में गिरिया और जारी है? क्या जिंदगी में रोजा इस अंदाज और स्टाइल का है? क्या जिंदगी में तब्दीली, रविशों की तब्दीली है? तो यकीनन हमारी फैमिली पर, हमारे खानदान पर, हमारे लोगों पर खुदा रहम कर सकता है। और हमें ऐसा ही यूना की किताब की तरह रोजा रखने की जरूरत है। कौम को बचाने के लिए, खानदान को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, और अपने घराने पास के खुदा का रहम हो जाए, हमें यूना की किताब की तरह रोजा रखने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको कसरत की आमीन।